गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर ये 7 बजे कौन सी क्लास होती है? जो की क्लास होती है सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सर हमारा वाला ऑप्शनल नहीं है। हाँ नहीं, हिंदी ऑप्शनल नहीं है। हिंदी ऑप्शनल है पर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है हिंदी ऑप्शनल की। पूजा मैम पढ़ाती हैं। अच्छा तो सर कब से कराएंगे? हिंदी आप तो हिंदी ऑप्शनल पढ़ चुके हैं। सर ऐसे ही पढ़ा है सर, दृष्टि वाले नोट से सर कुछ प्रॉब्लम होती भी है सर उसमें। अगर क्लास अवेलेबल हो जाएगी तो सर ज्यादा ही बेटर रहेगा। चलो तो अभी हम मैम से बात करेंगे कि क्या है कि कब तक उनका प्लान है। ठीक है सर। चलो तो शुरू करें, हाँ सर। है ना। बाकी 2 मिनट बाकी है तो बच्चे आ ही जाए, है ना। लास्ट में हम शायद उतना मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ उसके आगे, जब तक 2 मिनट है तो। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अ ब्रीफ हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग, बैंकिंग इन इंडिया। ये डिस्कस किया था ना। सो ध्यान से सुनिएगा, और जब तक सभी बच्चे बाकी आ भी जाते हैं। द फर्स्ट बैंक to be established in India was Bank of Hindustan. It was set up by Alexander and Company in 1770. In 1770. However, the bank did not survive for long. Thereafter, the East India Company (EIC) established 3 banks one after one. In 1806, Bank of Calcutta was set up, which was renamed as a Bank of Bengal, is in 1809. In 1840, Bank of Bombay was set up. In 1843, Bank of Madras was established. So these 3 banks were merged with each other in 1921. With this merger, the Imperial Bank of India was created. The Imperial Bank of India used to provide the same services to the British government, which are being provided by the RBI to the government of India. In 1865, Allahabad Bank was established. It is the oldest surviving bank in India, operating with the same name. Recently, it has been merged into Indian Bank. In 1881, Awadh Commercial Bank was set up, which was India's first joint stock bank. That is, has stockholder. In 1894, Punjab National Bank was set up. It was first completely Indian bank in which no foreign investment was involved. After independence, आजादी के बाद, in 1955, the Imperial Bank of India was bought under the control of government, and it was renamed as a State Bank of India, or SBI. So since the origin of SBI is associated with the Bank of Calcutta, it is termed as the oldest existing bank in India. However, the name SBI came into existence only in 1955 in the subsequent year. So 7 more large banks were converted into the associates of SBI. These associated were as the State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, and State Bank of Bikaner and Jaipur.
and State Bank of Travancore and State Bank of Saurashtra and State Bank of Indore. So all these associated were owned by the SBI, and the SBI is owned by the government of India. So however, the associates and the SBI were competing with each other, it's affected their profit and increased the operational cost. So hence it was decided to merge the associated with the SBI. In 2018, the State Bank of Saurashtra was merged with SBI. In 2010, State Bank of Indore was merged with the SBI. On 1st April 2017, even the remaining 5 associates were merged with the SBI. So hence the associates do not exist anymore. On the same date, even the Bharatiya Mahila Bank was merged with the SBI. And this bank was set up on 19 November 2013. So this is a brief history of banking in India. If in case you have any doubt, let's connect me and ask to anything. That is subject of matter. पूछिए अगर कुछ डाउट है. सर ये सारी डेट्स और बैंक क्वेश्चन बनते हैं क्या इसमें से? हाँ बिल्कुल बनते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा. ये मैंने दरअसल जो है इंग्लिश इस वजह से पढ़ा दिया है कि पिछली, आपको याद होगा कि पिछली जो हमारी क्लास थी तो उसमें एक बच्चा इंग्लिश का भी बोल रहा था और बाकी हमारी हिंदी में ही क्लासेस चलने वाली है, तो उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है. ये मैंने रिवाइज भी करवा दिया था, रिवाइज ही करवा दिया है, पिछली क्लास में हो चुका था. ठीक है, चलो अब इसके आगे जो हमारी सब हेडिंग है वो हिस्ट्री ऑफ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया. तो यहां से हमें स्टार्ट करना है, यानी भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास. भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास. तो देखो कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इतिहास से क्या मतलब है. देखो राष्ट्रीयकरण से मतलब या तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है. आजादी के दौरान भारत में कार्यरत सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे और बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी चरम पर हुआ करती थी. बैंक जमाकर्ता की जमा राशि लेकर के भाग जाया करते थे और बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार मात्र जो है शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा था. ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति ना के बराबर थी या थी ही नहीं, और समाज का उच्च वर्ग ही बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ था. अब जमाकर्ता की जमा राशि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बैंकों का विस्तार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने के उद्देश्य से, समाज के निम्न वर्ग के लोगों को भी बैंक से जोड़ने के उद्देश्य से बैंकों का नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करी गई. आपसे कोई पूछे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन के पीछे पूरी कहानी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दरअसल बैंकों का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे किया गया. तो जैसे कि मैंने आपसे यहां पर कहा कि इसके पीछे एक पूरे जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है, इसके पीछे पूरा आप ये कह सकते हो कि इनके नेशनलाइजेशन के पीछे पूरी कहानी है. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम आजाद हुए तो लगभग जितने भी बैंक थे, अभी आपने देखा जब मैंने आप एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी, तो आपने देखा कि लगभग सभी प्राइवेट बैंक थे, कोई वैसा सरकारी बैंक था ही नहीं. और इनमें धोखाधड़ी बहुत हो जाती थी, बहुत लोग पैसा लेके उड़ जाते थे. अब जमाकर्ता की जमा राशि लेकर के, पब्लिक का पैसा लेकर के भाग जाते थे. तो अब सरकार ने सोचा कि भाई इन बैंकों को क्यों ना कंट्रोल किया जाए, इनके जो है नाक में नाथ क्यों ना डाल दी जाए. तो सरकार ने इनके नाक में नाथ डालने का काम किया, अर्थात इनको कंट्रोल करने का काम किया.
और ये जो बैंक थे तो भाई उस समय जो है शहरी एरिया में, बड़े बड़े शहरी एरिया में थे, जो जो लोकल का एरिया, सॉरी जो ग्रामीण एरिया है, वहां कौन ना बैंक कोई जानता था कोई, और ना ही थे। तो एक ये भी इशू था। और दूसरा सबसे बड़ा इशू था कि भाई जो समाज का उच्च वर्ग है वही बैंकिंग व्यवस्था तक उसी की मतलब पकड़ थी या उसी की कनेक्टिविटी थी। समाज का जो निम्न वर्ग है उसकी कनेक्टिविटी ही नहीं थी। और कहा जाता है कि जो सेविंग है, सेविंग की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। अगर जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि आपके पास अगर एक दो व्यक्ति हैं और दोनों सेम टेंडेंसी के हैं, एक व्यक्ति को जो है जो जिसमें पैसे रखे जाते हैं गुल्लक मिल जाता है, और एक व्यक्ति क्या है कि अपने पैंट के जेब में ही क्या रखता है, पैसे रखता है। तो वो व्यक्ति जो पैंट के जेब में ही पैसे रखता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि जिसको गोलक मिल जाता है तो गोलक में उसने एक बार अपने गुल्लक में पैसा डाल दिया। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि जब उसका गुल्लक टूटेगा तभी जो है उसके पैसे निकलेंगे, अदरवाइज अब बीच में वो पैसे जो है बहुत निकाल सकता है, बहुत मेहनत से चिमटी उमटी डाल के। लेकिन इस अब दोनों सेम टेंडेंसी है, लेकिन इसके पास जेब में है, तो इसकी जीभ जो है वो कंट्रोल में नहीं है। ये गया तुरंत अंडे की दुकान में, और अंडे की दुकान से क्या खा के आ गया, आमलेट खा के आ गया। मतलब क्या है कि जो दोनों की टेंडेंसी सेम है सेविंग करने की, लेकिन ये सेव कर लेगा और ये नहीं सेव कर पाएगा। अब दरअसल बैंकों का जो सिस्टम है वही है कि भाई अगर बैंक में आप पैसा जमा कराते हो तो एक ये है कि भाई आपको इंटरेस्ट मिलता है, पैसा जमा रहता है, सेफ रहता है। सिंपल से समझो, अगर इंटरेस्ट बहुत कम भी मिलता है लेकिन सेफ तो रहता है, ठीक है। तो बैंकों के खुलने से जमा करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो एक ये भी था। और समाज का जो निम्न तबका था, दरअसल वो बैंकों तक उसकी पहुंच ही नहीं थी। तो भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, मतलब सरकारी करने की जो है प्रक्रिया, ये इस व्यवस्था करी गई कि ताकि जो समाज का निम्न तबका है तो उसको भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत, नेशनलाइजेशन के अंतर्गत, इस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत 1969 में 14 बड़े बैंक, कितने, जो 14 बड़े बैंकों को जिनके पास जो है 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, एनडीटीएल था, 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, ऐसे 14 बैंकों का 1969 में, 1969 में उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकारी बैंक हो गए मतलब। और फिर इसके बाद 1980 में आते आते 6 और बड़े बैंकों का, जिनकी उस समय जो है जमा राशि, जो न्यूनतम जमा राशि है पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए थी, और इनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद इसमें आप देखोगे कि इन 20 बैंकों में, क्योंकि इधर 14 हो गए और 6 तो हो गए ना 20 बैंक, निकाल लेते हैं 14 ये और 6 ये, तो ये जो 20 बैंक है, इन 20 बैंकों की बात करें तो इन 20 बैंकों में 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गया। द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया भाई, दिवालिया हो गया। इन्हीं 20 बैंकों में ये बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो जब ये दिवालिया हो गया तो इसको पीएनबी में मिला दिया गया, तो कितने बैंक बचे, 19। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घट करके 20 से कितनी हो गई, 19 हो गई। इसके बाद 1 अप्रैल, किसी का क्वेश्चन है, हाँ गुड इवनिंग नेहा। इसी के बाद जो है 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक, कौन सा, देना बैंक और विजया बैंक, इनका विलय करके बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। देना बैंक का किसमें, देना बैंक, और विजया बैंक का विलय कर दिया गया किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सरकार ने इस विलय की इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीयकृत जो नेशनलाइज्ड बैंक थे इनकी संख्या, बहुत सारे विलय हुए तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और एसबीआई को साथ में लेकर के वर्तमान में कुल 12 सरकारी बैंक। तो ध्यान से सुनना कि सरकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बेसिक डिफरेंट होता है, बेसिक डिफरेंट होता है।
तो राष्ट्रीयकृत बैंक कौन थे? राष्ट्रीयकृत बैंक वे बैंक थे जो प्राइवेट थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन जो सरकारी बैंक जो है, जैसे कि एसबीआई जो है, वो सरकारी बैंक, ये पहले से जो है इसको मतलब जो इसका नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था, ये पहले से जो है सरकारी बैंक, ये गवर्नमेंट इसको अपने अंदर ले ली थी, तो ये सरकारी बैंक है। तो इस समय जो है कुल एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि सभी नेशनलाइज बैंक सरकारी बैंक होते हैं, लेकिन सभी सरकारी बैंक नेशनलाइज बैंक नहीं होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, एसबीआई की पूरा इतिहास बताया था कि 1995 में जो एसबीआई है, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और फिर 3 बैंक आए मर्ज करके, फिर उसका नाम इंपीरियल बैंक का फिर एसबीआई में बदल एसबीआई किया गया। दरअसल एसबीआई सरकारी बैंक है, लेकिन सारे सरकारी बैंक सॉरी नेशनलाइज बैंक सभी सरकारी बैंक होते हैं, पर सारे सरकारी बैंक नेशनलाइज बैंक नहीं होते हैं। तो मैंने नेशनलाइज बैंक अगर आज आपसे कोई पूछे तो कितने हैं? 11 हैं। सरकारी बैंक कोई पूछे तो 12 है। यहां तक बताओ अगर कोई डाउट है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इनका जो है कौन किसका विलय किसके साथ किया गया वो भी मैं बता देता हूं। सॉरी, पूछिए। पूछिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, पूरा प्रतिभा पूरा रिपीट करना है? हाँ थोड़ा सा। ठीक है, कर देता हूं, लेकिन प्लीज ध्यान से सुना करें। देखो भैया, हुआ क्या, हमारा सब हेडिंग था, देखो जरा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास। तो भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इतिहास की मैंने कहानी बताई कि भाई इसके राष्ट्रीयकरण के पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक कहानी है। दरअसल क्या था कि बहुत सारे स्टार्टिंग में जब हम आजाद नहीं हुए तो जितने भी बैंक थे वो प्राइवेट बैंक थे, और आजादी के दौरान भारत में ये सभी जो प्राइवेट बैंक थे ये बहुत सारी जो है धोखा मतलब खूब धोखाधड़ी कर रहे थे। कोई नियम कानून वैसा था नहीं, डायरेक्ट खूब धोखाधड़ी कर रहे थे, और जो लोग पैसा जमा करते थे उनका पैसा लेकर के उड़ जाते थे। अब जैसे, और इनका विस्तार मात्र शहरी एरिया में थे, ग्रामीण एरिया में था नहीं। और मैंने अभी पूरी कहानी बताई कि भाई अगर जब तक बैंक नहीं होगा तो जो वित्तीय समावेशन है वो हो नहीं सकेगा, बैंकिंग व्यवस्था से लोग जुड़ नहीं सकेंगे, जमा करने की प्रवृत्ति लोगों की होगी नहीं, लोगों का विस्तार जो है निवेश वगैरह बढ़ेगा नहीं, तो इससे हमारी आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होती थी। सरकार ने देखा कि भाई जो है ग्रामीण एरिया में तो बैंक ही नहीं है और बैंक में बहुत अनियमितताएं हैं। सरकार ने जितने भी प्राइवेट बैंक थे उठा करके उनको सरकारी कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और उसी कड़ी में 1969 में 14 बड़े बैंक जिनका पेडअप कैपिटल 50 करोड़ था, यानी पेडअप कैपिटल का मतलब कि जो जमा राशि होती है, तो जमा राशि 50, जिनकी भी जमा राशि जो है एनडीटीएल कितना 50 करोड़ था, सभी को जो है नेशनलाइज कर दिया, सरकारी बैंक बना दिया। सरकार ने घोषणा की कि आज से सभी सरकारी बैंक हो गए 1969 से। ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही नेशनलाइजेशन की, और 1980 तक आते आते 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन 1993 में एक घटना घटती है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो दिवालिया हो जाता है और उसका विलय पंजाब बैंक के साथ कर दिया जाता है, पीएनबी के साथ कर दिया जाता है। इसे अब जो है पहले 20 ये नेशनलाइज बैंक थे, लेकिन नेशनलाइज बैंक कर दिए गए। इसके बाद जो है इनकी संख्या जब 19 रह जाती है, और 1 अप्रैल 2019 को आपको याद होगा देना बैंक और जो विजया बैंक था इनको मर्ज करके दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर दिया गया। तो सरकार ने उस समय बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया, विलय किया। विलय का मतलब एक दूसरे बैंक को जो है एक बैंक के नाम पे, जैसे उदाहरण के तौर पे कि जो विजया बैंक और देना बैंक थे, तो अब जो है देना बैंक और ये विजया बैंक एग्जिस्ट नहीं करते, इनका विलय, इनको मर्ज कर दिया गया किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा। और उसके पीछे की कहानी मैंने बताया कि अभी मैं आगे बताऊंगा भी कि उसके एक्चुअल में कहानी क्या थी, क्यों मर्ज किया गया, उसे हम देखेंगे। तो टोटल इस समय अगर आपसे कोई पूछे तो 11 भाई नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, और 12 सरकारी बैंक है। तो सब जो नेशनलाइज्ड बैंक जो है सरकारी बैंक होते हैं। 12 जो इसमें सरकारी बैंक क्यों है? क्योंकि एसबीआई जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, वो सरकारी बैंक है। ठीक है, तो अब देख लो कि कौन सा मतलब कितने 12 सरकारी बैंक हैं, तो सभी को बारी बारी से देख लो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, और किसका कहां विलय किया गया ये भी थोड़ा सा आप देख लो। नंबर 1 जो है बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सरकारी बैंक मैंने बताया, इसकी पूरी कहानी बताई थी पिछली क्लास में मैंने, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना।
सबसे पहले अलेक्जेंडर एंड कंपनी के बैंक से स्टार्ट किया था 1770 में, फिर वो डूब गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना करी, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास। उन 3 बैंकों का विलय 1921 में करके द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके बाद में क्या कर दिया जाता है, याद होगा कि एसबीआई कर दिया जाता है 1955 में। यही कहानी है एसबीआई की। तो एसबीआई एक सरकारी बैंक है। सर एसबीआई का पहले कुछ और भी नाम था क्या? हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ओके। हाँ देखो बेटा, हुआ गया, एसबीआई की एक कहानी ही बहुत बड़ी है। ये कहानी जो है ना स्टार्ट होती है 1806 में। 1806 में सबसे पहले बैंक ऑफ जो है कोलकाता आता है। उसी का 3 साल बाद 1809 में नाम बदल करके बैंक ऑफ कोलकाता का उसको बैंक ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। 1840 में बेटा बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में 3 साल बाद बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक आते हैं। इनकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। अब देख खुद ही सोचो, 1840-43 बैंक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, तो इनकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। आगे जो है कहानी बढ़ती है तो 1921 में इन तीनों को विलय कर दिया जाता है और इनका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर जब हम आजाद होते तीनों का हैं, एक ही नाम कर दिया जाता है, हाँ तीनों का कंबाइन मर्ज कर देते हैं। और नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आगे आते आते 1955 में इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या रखा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये 3 ब्रांच पहले खुली थी, उसके बाद उसे एक कर दिया और फिर लास्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। ओके। अब देखो जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो अब टोटल इस समय 12 सरकारी बैंक है और 11 नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक कौन थे कि जो पहले प्राइवेट थे, सरकार ने उनको अपने अधीन ला दिया। और सरकारी बैंक क्या है कि जो पहले से सरकार ने ही स्थापित किए। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो सरकारी बैंक और नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्या डिफरेंस है, आप बताओगे कि सरकारी बैंक वे बैंक थे जो सरकार ने खुद जो है इस्टेब्लिश किया, पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक वो बैंक थे जो सरकार पहले वो प्राइवेट हाथों में थे, सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको सरकारी बनाया। ठीक है, तो ये पहले ये प्राइवेट बैंक थी सर, और उसके बाद ये गवर्नमेंट बैंक हो गई है। हाँ सरकार जो है पहले ये प्राइवेट बैंक थे। अभी मैंने बीच की कहानी बताई थी ना कि 14 बैंकों का 1969 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और उन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। कहा जाता है कि अब तक में भारत में सबसे अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री, मतलब सबसे समाजवादी प्रधानमंत्री रहा है तो समाजवादी प्रधानमंत्री नेहरू और फिर इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी तो अपने पिताजी को भी जब मतलब वो ऊपर निकल गई, उनसे भी ज्यादा निकल गई, क्योंकि उनने प्रिवी पर्स जैसे मतलब जो राजा रजवाड़ों की वाट लगा दी थी, ये समझ लो आप। ठीक है, और वो अकेली ऐसी महिला थी ना, मतलब बहुत मजबूत महिला। आप सोच नहीं सकते हो, वो जनता के हित में ज्यादा काम करती है। बहुत मजबूत महिला, बहुत मजबूत। तो अब ये नहीं देख लो, अब जो 12 सरकारी बैंक जो बचे हैं, तो एसबीआई है। क्या है? एसबीआई नंबर 1। नंबर दूसरा है, चाहो तो लिख लो, ठीक है, नोट्स बाकी मिलेगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ वही नोट्स मिलेगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो पहला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ, लिखना चाहो तो मैं अगेन बोल रहा हूं कि जो है आप लिखते भी चलो। तो जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड सर? हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, मैं बोलता चलता हूं, लिखते जाओ। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन मर्ज्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक टू फॉर्म द नेशंस सेकंड लार्जेस्ट लेंडर। अच्छा सर, ये कैनरा बैंक जो है ये प्राइवेट है? नहीं, नेशनलाइज्ड बैंक है। अभी बताऊंगा, परेशान मत हो, बताऊंगा, सभी को वही तो लिखवा रहा हूँ। यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सॉरी शॉर्ट में लिखता चलता हूं, हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, साथ में बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इसका विलय जो है दोनों को मर्ज करके पीएनबी में कर दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तो अब पीएनबी ये कहता है, जिनका भी आपको याद होगा कि जिनका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में वो हुआ करता था, खाता हुआ करता था, अब उसका खाता पीएनबी में हो गया है। और आईएफसी कोड भी बदल गया होगा, याद होगा तो आईएफसी कोड भी बदल गया है। जिनका खाता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, तो जी उनका सर। विलय जो है, जी बोलिए। नो सर, उसका मुझे पता है आईएफएससी कोड चेंज हो गया। तो इसी वजह से चेंज हुआ है। तो जी। इन जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया। तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मैंने बताया था कि जो है इसमें किसका, देना बैंक और विजया बैंक, यही थे ना, एक देना जी। बैंक था और एक विजया बैंक था, विजया जी। बैंक। इनका विलय कहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। चौथा बैंक है केनरा बैंक। और केनरा बैंक में जो है सिंडिकेट बैंक था ना एक, तो सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। वो कैनरा बैंक में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, तो इसका जो है किसमें, केनरा बैंक में, जी। केनरा बैंक में जो है सिंडिकेट का विलय किया गया है। अगला कैनरा है, बैंक ज्यादातर गोल्ड लोन पे भी काम करता है ना, ज्यादातर। सारे बैंक करते हैं। अभी मैं लेकिन कैनरा बैंक का ज्यादा मतलब रहता है। बेटा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप परेशान ओके। नहीं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जैसे चैप्टर समाप्त होगा, आप खुद सोचिए कि मैं ये जो चैप्टर है 14-15 घंटे पढ़ाता हूँ, पंजाब कह रहा हूँ, बैंक अरे बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है 14-15 घंटे पढ़ाता हूँ, तो कुछ नहीं ठीक रह है। जाएगा। जैसे पिछले मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, खुद बच्चों से पूछिए ना, ठीक है। तो परेशान नहीं हुई। लिखो, पांचवा जो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर दिया गया है। आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऑफ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय है वो किसे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर दिया। इसके बाद जो आपका छठा है वो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया। सातवां बैंक है इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में किया गया है। जो इलाहाबाद बैंक था ना, इसका बैंक कहा, इंडियन बैंक में, कहा, इंडियन बैंक में किया गया। तो 7 हो गए। आठवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और 9वां आपका बेटा है इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके साथ साथ आपका जो 10वां है वो यूको बैंक, यूको बैंक है। 11वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आपका 12वां पंजाब और सिंध बैंक है, पंजाब और सिंध बैंक है। तो ध्यान रखना कि ये 12 क्या है, सरकारी बैंक है। और इधर एक वाले को छोड़ दें अगर ये, तो 2 से लास्ट तक जो है ये नेशनलाइज्ड बैंक है। क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक। अब यहां तक किसी भी बच्चों को पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो। डरिए नहीं, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, डरिए नहीं। नेहा, प्रभा, हुमा, प्रतिभा, राज। सर मुझे इस चैप्टर का ना पहले क्वेश्चन देखना है, इस चैप्टर का क्वेश्चन देखना है प्रीवियस का सर, आपके पास हो तो सेंड कर देना। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, पीटी के, मेंस के, दोनों के भी।
हाँ मैं सर करूंगा समझ, ना, अभी तो हमारा टेस्ट होगा ना, टेस्ट तो पूरा वैसे ही होगा ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेस्ट नहीं सर, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, वो क्वेश्चन थोड़े समझ नहीं आ रहे थे। हाँ हाँ जैसे कि अभी 3 दिए ना, हाँ हाँ, कुछ कुछ थोड़े सब तो शब्द पहले से मुझे पता रहेंगे ना, तो मुझे मालूम पड़ेगा अंदर पढ़ना क्या ठीक है ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भेजना है ना? है। हाँ, कोई सिलेबस भेजना है। चैप्टर के यानी क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन क्या ठीक है है। ठीक है ठीक है, कर दूंगा। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, हुमा, अमीर? नहीं सर, डाउट नहीं। ठीक, चल। अब जो है भारत में बैंकों का क्लासिफिकेशन देख लो, वर्गीकरण देख लो। भारत में बैंकों का वर्गीकरण, भारत में कार्यरत बैंकों को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने? दो भागों। एक शेड्यूल बैंक होते हैं, यानी इनको अनुसूचित बैंक कहते हैं, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक। और दूसरे हैं गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल। अब देखो कि ये शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? ये वे बैंक हैं जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में, दूसरी लिस्ट में या दूसरी शेड्यूल में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? सूचीबद्ध है। यह अनुसूची जो है परिवर्तनशील है। जब भी आरबीआई से अनुमति प्राप्त कर भारत में कोई नया बैंक बनता है, स्थापित होता है, तो उसको इस अनुसूची में ऐड कर दिया जाता है। और जब भी कोई बैंक अपना कारोबार समाप्त करता है तो उसको इससे रिमूव कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब एक बैंक, ऐसा समझो कि कारोबार का मतलब क्या है कि वो समाप्त पूरी तरीके से तो बंद हो जाता है, तब उसको इस जो अनुसूची है उससे क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। मान लो कि कोई एक बैंक है कि स्टार्ट हुआ, हुमा नूर करके एक बैंक स्टार्ट हुआ, हुमा अमीर करके, तो उस बैंक को इस सूची में ऐड कर दिया जाएगा। और मान लो 10 साल बाद इन्होंने अपना कारोबार बंद करके, इन्हें लगा कि नहीं अब कारोबार नहीं करना है, तो इस सूची से उस बैंक को हटा दिया जाएगा। ठीक है? तो सर आपकी बात ऊपर वाला कबूल कर ले, मेरे नाम पे भी बैंक हो जाए। चलो, तो अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के द्वारा कुछ जो है गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। तो गाइडलाइन हम देखते हैं कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं तो उनको क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। देखो भाई, इन बैंकों की किसी भी क्रिया में, अच्छा हम आपने पिछला लेक्चर कर लिया था ना? जी सर, वो सुना था आपने, वीडियो डाली थी ना ग्रुप में। हाँ, पूरा कर लिया था ना? नहीं, थोड़ा रहता है सर अभी। अच्छा, थोड़ा रह गया था। जी सर। चलो ठीक है, तो बाकी यहाँ से एक्चुअल में से कनेक्ट कर पाओगे इस पूरे लेक्चर को। जी, देखो आज तो मैं ये पूरा लेके और फिर वो वाला कंप्लीट कर लूंगी आज ही। ठीक है, तो अब जो अनुसूचित बैंक है, तो अनुसूचित बैंकों के लिए जो आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा कुछ क्या है? गाइडलाइन जारी करी गई। आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी करी गई। तो अब क्या क्या गाइडलाइन है? कि इन बैंकों की किसी भी क्रिया से ग्राहकों को हानि नहीं होनी चाहिए। नंबर एक, हुमा चाहते हैं कि उनका बैंक हो, तो हुमा को यह सुनना चाहिए कि पहली बात कि उनके बैंक से किसी भी ग्राहक को कोई लॉस ना हो। नंबर एक, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड वन, कि उनको न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों के लिए इस प्रदत्त पूंजी को बढ़ा करके अब 500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पहले 5 लाख हुआ करता था। तो पेडअप कैपिटल क्या है वो सुन लीजिए। पेडअप कैपिटल वो कैपिटल है या प्रदत्त पूंजी वह पूंजी है जो कि किसी कंपनी की स्थापना के दौरान जो कंपनी का मालिक है, जो फाउंडर है, या जो दूसरे जो फाउंडर हैं, जो शेयर धारक हैं, जब उसमें लगाते हैं, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट समझो। तो अगर चाहती हैं हुमा अमीर, तो इनको मिनिमम कम से कम इनके पास 500 करोड़ रुपया होना चाहिए।
तीसरा ओके क्या सर। है कि इन बैंकों को आरबीआई के द्वारा जो जारी मौद्रिक नीतियां हैं उनका अनुपालन भी करना होगा। अब राज मैंने आपको मौद्रिक नीतियां समझाया था, अब याद होगा आपको। तो इन बैंकों को, कोई भी बैंक खुलता है तो जो आरबीआई गाइडलाइन जारी करेगी, जो भी मौद्रिक नीतियों को जो कहेगी कि इतना आपको सीआरआर, एसएलआर, इतना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमसीएलआर, वो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये गाइडलाइन। अब इसके बदले जो है आरबीआई से आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता भी मिलती है, सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। हम अनुसूचित बैंकों से भिन्न जो है गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। तो इसे तो आप जान गए कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। अब गैर अनुसूचित बैंक, इन्हें थोड़ा सा सुन लो। गैर अनुसूचित बैंक की स्थापना कभी भी, कहीं भी, कोई भी कर सकता है। अब आरबीआई इन बैंकों के लिए नियम बनाती है और इन नियमों को प्रभावशाली बना पाना कठिन होता है। तो ये कहा जा सकता है कि गैर अनुसूचित बैंकों को आरबीआई नियंत्रित नहीं कर पाती है। तो ये जो है गैर अनुसूचित बैंक होते हैं। अब यहां तक बताओ, किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछो। अरे पूछिए, अगर यहां तक जो मैंने बताया, अनुसूचित बैंक बताए, गैर अनुसूचित बैंक बताए, अगर यहां तक डाउट हो तो पूछो। अगर नहीं डाउट है तो हाँ ना, जल्दी में जवाब दिया करो। आप लोग तो लगता है कि आप ऐसे। सर कोई डाउट नहीं है अभी। चलो, तो अब इसके आगे सुन। आरबीआई, इसके बाद जो है शेड्यूल बैंक जो है, मैंने बताया, पहले शेड्यूल को देखते हैं, नॉन शेड्यूल को तो मैंने बता ही दिया। तो आरबीआई और जो है शेड्यूल बैंक, यही आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट: कॉमर्शियल बैंक, commercial bank, first one is, second one is RRB, regional rural bank, RRBs, RRBs। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव। सो कॉमर्शियल बैंक again classified into 2 part: public sector bank, public sector bank, public sector bank, and second one is private sector bank, private sector, private sector bank। And the public sector bank again classified into 2 part: SBI and other nationalized bank. Second one is other nationalized bank, other nationalized. And private sector bank classified into 2 parts: Indian private bank and foreign private bank, foreign private bank. Cooperative bank again into classified 2 parts: state cooperative and urban cooperative, urban cooperative. So state cooperative classified again 2 parts: central cooperative, central cooperative, cooperative, and second one is PACS। तो ये तो चार्ट है, अब सभी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो इस चार्ट का, आपको ये काम आएगा। मैंने शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, यानी अनुसूचित बैंक क्या है, वो मैंने बताया। वे बैंक जो आरबीआई अधिनियम
1934 की सेकंड लिस्ट में लिस्टेड होते हैं, सेकंड अनुसूची में उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। सो अनुसूचित बैंक अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कॉमर्शियल बैंक आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो अब देखो कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो कि लाभ बनाने के उद्देश्य से काम करते हैं, और यदि इन बैंकों पर सरकार का स्वामित्व हो तो इनको सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। अब यदि मान लो कि निजी निकाय स्वामित्व रखता हो, इन पर जो स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का हो, तो इन्हीं को हम जो है प्राइवेट बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कॉमर्शियल बैंक क्या है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि कॉमर्शियल बैंक को दो भागों में बांटा जाता है, तो जिनका मालिक सरकार हो उसको पब्लिक सेक्टर के बैंक, और जिनका मालिक इंडिविजुअल हो, प्राइवेट आदमी हो, वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक। वाणिज्यिक बैंक कौन? कि वे बैंक जो कि लाभ बनाने के उद्देश्य से काम करते हैं, उन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और जिन पर मालिकाना अधिकार सरकार का है उनको पब्लिक सेक्टर बैंक, और जिन पर इंडिविजुअल का है उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है। अब राष्ट्रीयकृत बैंक, अब यहां पर अगेन देखना, मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक को अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स में। तो राष्ट्रीयकृत मतलब यहां पे अदर नेशनलाइज्ड बैंक लिखा था ना, तो राष्ट्रीयकृत बैंक वो बैंक हैं जो पहले निजी बैंक थे, पहले प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, परंतु बाद में इन्हें सरकार के अधीन लाया गया। तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। परंतु सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनिवार्य रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे भारतीय महिला बैंक की स्थापना सरकार के द्वारा करी गई थी, तो ये क्या था? पब्लिक सेक्टर बैंक था, सरकारी बैंक था, यह कभी भी निजी क्षेत्र का बैंक नहीं था, तो इसको हम पब्लिक सेक्टर का बैंक कहते थे। ठीक है, ना कि नेशनलाइज्ड बैंक। तो एसबीआई क्या है? पब्लिक सेक्टर का बैंक है, और बाकी के जो मैंने 11 बताए थे एसबीआई को छोड़ के, वो सभी नेशनलाइज्ड बैंक है। तो यहां तक बताओ कोई डाउट हो? अब आईडीबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक थी, परंतु इस बैंक के बढ़ते गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के चलते, एनपीए के चलते, भारत सरकार ने जो है इसकी अधिकांश हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने एलआईसी को सेल कर दी है। अब वर्तमान में जो आईडीबीआई बैंक में एलआईसी के पास जो एलआईसी है तो 51% की हिस्सेदारी है, और आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में रख दिया है। अब इसे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। वहीं वर्ष 2014 में आरबीआई ने भुगतान बैंक और वित्तीय लघु बैंक, जो लघु वित्तीय बैंक यानी पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना के लिए कुछ गाइडलाइन दिए थे, और इन बैंकों को भी आरबीआई ने अनुसूचित की। ये जो इस शेड्यूल है तो इसी श्रेणी में रखा था। अब इन्हें अनुसूचित बैंक की एक नई श्रेणी कह सकते हैं। जो अनुसूचित बैंक का ये जो है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक नया श्रेणी है, एक नया सीरीज है। तो अगर यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो पूछो, नहीं फिर इसके आगे मैं कुछ चीजें और बताता हूं, पर जो है टुकड़े टुकड़े में समझते चलो तो चीजें और आसान रहेंगी। कोई डाउट नहीं है। पक्का? प्रतिभा, हुमा, राज? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चल अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं जो है एक्चुअल वैल्यू और मार्केट वैल्यू वो बता देता हूं। देखो पहले सुनो और फिर इसके बाद इसे समझाऊंगा। बाजारी मूल्य के आधार पे, मार्केट वैल्यू के आधार पर भारत की जो सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है वो एचडीएफसी है। मतलब बाजारी मूल्य के आधार पर, बाजारी मूल्य के आधार पर, बाजारी मूल्य होता क्या है पहले इसे सुन लो फिर पता चलेगा। देखो मान लो कि इस बार राज्य की कोई बैंक है, राज्य की ये जो बैंक है तो ऐसे समझो कि ये बैंक में राज्य के 100 CR हैं,
सॉरी 10 CR ले लो, राज ज्यादा पैसा नहीं राज को चाहिए, चलो 100 CR ही ले लो, 100 करोड़ रुपया है। और साथ में जो है 2000 शेयर भी है, और एक शेयर की कीमत कितनी, मान लो 10K है, तो 100 CR एक ये, और इसका जो है हम 10K में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो निकल के आएगा वो राज की कंपनी की या बैंक की क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी। या फिर ऐसे समझो कि राज, मान लो कि इस बैंक के टोटल 100 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 10,000 है, तो इसमें जो टोटल शेयर में मल्टीप्लाई करके जो राज की कंपनी की या उनके बैंक की क्या है, मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये बाजारी मूल्य। तो कहा जा रहा है कि बाजारी मूल्य के आधार पर भारत की जो सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है वो HDFC है, HDFC बैंक। दिए गए कुल ऋण परिसंपत्तियों के आधार पर और शाखाओं के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक क्या है, SBI है। मतलब इसने सबसे ज्यादा पैसा दे के रखा है, तो सबसे ज्यादा दिए गए ऋण के आधार पर और ब्रांचेस के आधार पर सबसे बड़ी बैंक कौन है, SBI है। JP मॉर्गन चेस जो कि अमेरिकी बैंक है, और बाजारी मूल्य के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है कौन, JP मॉर्गन चेस, JP मॉर्गन चेस। सर ये कहाँ की बैंक है? ये अमेरिकी बैंक है, अमेरिका की बैंक है। सर ये कब लाई गई थी बैंक? ये JP मॉर्गन चेस कब लाई, अरे बहुत, ये 17 के डिकेड के आसपास लाई गई थी, बहुत पुरानी बैंक है। ठीक है, तो JP ये हमारी बैंक नहीं है, बस इतना जान लो। और बाकी हम दुनिया के बैंक, हमारे सिलेबस में भी वैसा नहीं कि हम मतलब दुनिया के बैंकों का मतलब पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद करें कुछ, तो बस ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है और ये मार्केट वैल्यू के आधार पे, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो JP मॉर्गन चेस जो कि अमेरिकी बैंक है और बाजारी मूल्य के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। हाँ ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। और ये बैंक अब भारत में कोई सर्विसेज नहीं देती है, भारत में ये कोई सेवाएं नहीं देती है। कि कोई भी ब्रांच भारत से लिंक नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं देती है? अरे कोई ब्रांचेस ही नहीं है, नहीं उसने अपना कारोबार भारत में रखा है, सिंपल है। बढ़िया, हमने भगा दिया था ना इन्हें, इसलिए नहीं देती है। हमने इनको कहाँ भगा दिया था, ये बिना इंडिया पे कब्जा नहीं था अमेरिका का पहले। अमेरिका का कब्जा था, ये तो आप बता रहे हो, कहाँ कब? जब सर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी तो इन्होंने पॉलिटिक्स तभी से तो शुरू करी थी, फसाद तो इन लोगों ने तभी से शुरू कर दिया था ना। अरे वो ब्रिटिश, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? जी जी सर, जी जी सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका की ना थी, ब्रिटेन की थी। हाँ। हुआ आप जो है ना हमारे सर से हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, सुबह 11 बजे चलती है रितेश सर की क्लास हिस्ट्री, ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलो। आज और क्लास ली थी आपकी? अच्छा आज ली थी आपने, जी सर। कैसी लगी? नहीं अच्छे पढ़ाए थे सर, बहुत ही अच्छा काफी पढ़ाते अच्छा हैं, बहुत इमिनेंट फैकल्टी बहुत है। अच्छे से, जैसे आप डीपली समझाते हैं हर चीज को कि डाउट नहीं रहता, ऐसे ही वो भी पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो JP मॉर्गन चेस जो है ये अमेरिका की बैंक है और ये मार्केट वैल्यू के आधार पे दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है, पर ये भारत में अपनी सेवाएं नहीं देती। अमेरिकी मंदी से पहले अमेरिका की सिटी बैंक, ये विश्व की सबसे बड़ी बैंक थी। 2008 में अमेरिकी मंदी आई थी, याद होगा। इससे पहले एक अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी बैंक थी सिटी बैंक, सिटी बैंक, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक थी और ये भारत में कार्यरत है। आपने देखा होगा ब्रांचेस, जो सिटी बैंक वो अमेरिका की बैंक है, ठीक है, अमेरिकी बैंक है सिटी बैंक, और देख लेना कई जगह इसके ब्रांचेस मिल जाते हैं बड़े बड़े शहरों, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अगर कहीं देखे तो समझ जाना कि अच्छा ये तो अमेरिकी बैंक है। अब यह बैंक भारत में क्या है, अपनी सेवाएं दे रही है। दिए गए कुल ऋण और परिसंपत्ति के आधार पे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC
आईसीबीसी मतलब दिए गए कुल ऋण सबसे ज्यादा किसने, जैसे एसबीआई क्या थी, दिए गए कुल ऋण के आधार पे भारत की सबसे बड़ी बैंक, ब्रांचेस के आधार पे सबसे बड़ी बैंक, लेकिन एचडीएफसी मार्केट वैल्यू के आधार पे सबसे बड़ी बैंक भारत की। तो इसी तरह जो आईसीबीसी है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना इसको कहते हैं आईसीबीसी को। तो आईसीबीसी विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, दुनिया की जो आईसीबीसी है ये सबसे बड़ी बैंक है। किसके आधार पर? दिए गए ऋण और परिसंपत्ति के आधार पर। ठीक है। इसके साथ साथ ब्रिटेन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में कार्यरत है और सभी विदेशी बैंकों में भारत में इस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस है। किसकी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ की है? ये ब्रिटेन की है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचेस इसी की है। भारत में क्या है? ये कार्यरत है। एक डायचे बैंक है, डायचे, जो कि जर्मनी की बैंक है, वहां की सबसे बड़ी बैंक है जर्मनी की डायचे बैंक, और ये भारत में कार्यरत है डायचे बैंक। पीएनबी परिवार, जो कि ये फ्रांस की बैंक, पीएनपी नॉट पीएनबी, पीएनपी। तो पीएनपी परिवास, एक परिवार पढ़ते हैं, मैं परिवास बोल दिया, स्पेलिंग परिवास ही लिखते हैं, PARIBAS परिवास। तो जो कि ये जो है फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक है और ये भारत में ये भी अपना जो है सर्विस देती है। तो ये चीजें हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण थी। यहां तक कोई भी डाउट हो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा फैक्ट है, डरना नहीं है, नोट्स में सब मिल जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे रट जाएगा, जैसे मुझे है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो पूछ लो, डरो नहीं। घर लेके, अगर डाउट घर लेके गए तो वापस से फिर जो है मतलब क्लियर नहीं होगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो अब आपको याद होगा कि हमने क्या डिस्कस कर लिया कि शेड्यूल बैंक के अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक, ये वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आरआरबीज पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक। चलो भैया, आरआरबी, आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक, इसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण आरआरबी। प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया था। जो शेड्यूल बैंक थे उनकी अलग श्रेणी में, लेकिन उनके ही अंतर्गत रखा गया है। परंतु अब इन्हें वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में रखा जाता है। जो कॉमर्शियल बैंक है उन्हीं की श्रेणी में अब की जो कंडीशन है। आरआरबी की स्थापना ग्रामीण हिस्सों में ही होती है। जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है उनकी स्थापना ग्रामीण हिस्सों में ही होती है। अब ऐसे आरआरबीज उस क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकते हैं। एक आरआरबी की स्थापना में 50% का योगदान केंद्र सरकार का होता है, 35% का योगदान सार्वजनिक बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है, और 15% का जो योगदान है वो जो है राज्य सरकार का होता है। और इन बैंकों का जो ऑपरेशन है, जो परिचालन है, वो कौन करता है? जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है वो देखती है, ऑपरेशन करती है, और ये अलग अलग नाम से जो है कार्यरत है। भारत में जो है 2 अक्टूबर 1975 को, मतलब इसकी जो स्थापना ही जो है 2 अक्टूबर 1975 को वेरी फर्स्ट टाइम 4 बैंकों की स्थापना होती है। 5 जगह आरआरबी की स्थापना करी गई। एक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और गोरखपुर में, दूसरा बंगाल के मालदा में, तीसरा हरियाणा के भिवानी में, मतलब चौथा हो गया ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 जगह होता है, और राजस्थान के जयपुर में। वेरी फर्स्ट टाइम जो है 4 राज्यों में 5 बैंक 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 1975 को इनकी स्थापना करी जाती है। आपने कभी सोचा कि ये 2 अक्टूबर 1975 ही क्यों चुना गया? अब देखोगे तो गांधी जी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे। पावर को एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। गांधी जी लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि अगर गांधी जी थोड़ा दिन और चलते, थोड़ा दिन, तो मुझे लगता है कि भारत में जो है केंद्र बहुत मजबूत है। शायद उसकी जगह जो लोकल गवर्नेंस है या गवर्नमेंट है वो ज्यादा मजबूत होती। मतलब इतनी नहीं कि वो केंद्र सरकार से ज्यादा मजबूत होती, लेकिन उसको भी ठीक ठाक पावर होते। हालांकि बाद में कुछ चीजें काफी कुछ हुई,
लेकिन देखो गांधी जी जो है ना सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते थे, सत्ता के एक सहयोग, क्योंकि जो ग्रामीण कहा जाता है, गांधी जी का मानना था कि भाई जो असली अगर देश देखना है तो गांव में, असली भारत गांव में है, शहरों में तो इंडिया रहता है, और गांवों को हमेशा प्रमोट करते थे। तो 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में 5 जगह उनके जन्मदिन के दिवस पर, बर्थडे के टाइम पे क्या किया गया कि 5 जो है आरआरबी की स्थापना करी गई। दरअसल आरआरबी का मुख्य काम क्या है कि भाई जो आरआरबी है ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होना है, तो इनका ग्रामीण लोगों का वित्तीय समावेशन करना, अपनी जो है वित्तीय व्यवस्थाएं ग्रामीणों को देना, यही आरआरबी का मुख्य कार्य है। अब धीरे धीरे, अभी देखो 1975 की बात है, मात्र 4 राज्यों में 5 आरआरबी है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर के कितनी 196 हो गई, और इन्होंने 196 आरआरबी हजारों में अपनी ब्रांचेस खोल दी, शाखाएं खोल दी। आरआरबी का उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना कि ग्रामीण आबादी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का आरआरबी का उद्देश्य रहा है। अब इनका कार्य कृषि के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे उद्योग हैं उनकी स्थापना के लिए ऋण प्रदान करना था, परंतु इनमें से अधिकांश जो आरआरबी वो घाटे में चलने लगे, और आपस में फिर इनका जब घाटे में चलने लगे तो फिर विलय करके इनको मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। अब विलय की इस प्रक्रिया के कारण अब इनकी जो संख्या है वो काफी घट करके विलय कर दिया गया है, तो 56 हो गई है, और इनको घटा करके 36 लेके आना है। कितना? 36 लाया जाएगा। वर्तमान में एसबीआई जो है कुल 14 आरआरबी, कितना? 14 आरआरबी को स्पॉन्सर करती है। कौन? एसबीआई। कितने को? 14 आरआरबी को स्पॉन्सर करती है, जो कि मैक्स है। और भारत में अब नए आरआरबी स्थापित नहीं किए जाते हैं। गोवा और सिक्किम में आरआरबी नहीं है। भारत के सभी राज्यों में आरआरबी है, लेकिन गोवा और सिक्किम में नहीं। आपने कभी सोचा, क्योंकि खास करके गोवा में जो है कोई ग्रामीण इलाका एरिया ही नहीं है वैसा, तो आरआरबी की वैसी स्थापना गोवा में जरूरत ही नहीं पड़ी। ये है आपके आरआरबी का इतिहास। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर यहां तक डाउट नहीं है तो हम आगे जो है कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज अगर कोई डाउट होता है आरआरबी में तो पूछ लो। सर कोई डाउट नहीं है सर, इसके क्वेश्चन मैंने देखे थे सर पीटी के, सर 2004 से सर लगातार आए हुए हैं, 6-7 छोड़ा है, 2004 में आया है, 10 में आया है, फिर 11 में आया है, फिर सर 16 में आया है, फिर इसके बाद 17 और 19 में आया है, उसके बाद के हमने देखे नहीं सर, लगातार से बैंक के क्वेश्चन आए हैं इसमें। बिल्कुल। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि आप देखिए, आप पिछला मॉनेटरी पॉलिसी वाला टेस्ट नहीं दी थी सर वो एक्चुअली सर थोड़ा वो थोड़ा बताया तो था सर मैंने आपको। देखो जैसे यहाँ राज है, इनसे पूछिए। दरअसल आप अगर क्लास और नोट्स पढ़ लेती हैं तो क्वेश्चन की मोर देन 85 सर मैंने सर जो आपने क्वेश्चन दिए हुए थे सर वो मैंने देखे थे सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं उसमें से 3-4 ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे, बाकी क्वेश्चन आ रहे थे। और वो आपने मेरे बनाए, पहले सुन लीजिए, वो मेरे बनाए क्वेश्चन नहीं थे, वो जो है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। वेरी गुड। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और मैं तभी बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, कि क्लास करने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन 85% या 80% के आसपास क्लियर हो रहे हैं तो समझना कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट बेहतर है, अच्छा है, और दोनों तरीके, दोनों तरफ से आप पढ़ भी रहे हो, टीचर सही पढ़ा देता है। मैं नहीं कह रहा सर हूँ उस दिन एक्चुअली सर मेरे साथ थोड़ा एक इश्यू चल रहा था सर, 2-4-5 दिनों से मेरे पास अननोन नंबर से मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो सर उसमें थोड़ा टेंशन हो रही थी। आज फाइनली मैंने अपना टेलीग्राम डिलीट भी किया हुआ है सर। तो प्रभा शुक्ला को बनना है कलेक्टर, और ये अननोन नंबर को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। अरे बेटा कोई भी अननोन नंबर आए, सिंपल सा है। सर बहुत गंदी सर, 1-2 नहीं सर, बहुत गंदी तरीके से बहुत सारे आ रहे थे सर, पूरा एक ग्रुप मेरे व्हाट्सएप पे आया करीब 300-400 नंबर का सर। मतलब आई डोंट बिलीव दिस सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक ही बार में लीव कर दो उसे। सॉरी, एक ही बार में लीव हाँ कर दो। मैंने लीव भी किया हुआ है। पहले एक नंबर आया, फिर मतलब फिर लगातार टेलीग्राम पे भी ऐसे ही स्टार्ट हो गया। बहुत गंदी और भद्दी तरीके से बातें कर रहे थे, मतलब बता नहीं सकते हैं। तो उसमें थोड़ा माइंड ऐसा होता है। मैं काम करती हूँ, मेरा तो इंटरनेट पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, वहां से कोई भी उठा के कुछ भी कर ले। इतना किसी को अथॉरिटी ही ना दो, उठाओ ब्लॉक कर दो, एक ही ऑप्शन है बस हमारे पास। तो
वेरी गुड। ऐसे हम किसी के मुंह लगेंगे तो नहीं पता सर, आज चलेगा। मैंने फाइनली टेलीग्राम डिलीट कर दिया क्योंकि सर उसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो व्हाट्सएप ही मेरा रखा मानना हुआ है, है जो क्लास चीज व्हाट्सएप सक्षम से है ही। उस चीज को निकाल के फेंक दो, दोबारा उस चीज की तरफ पलट के सोचोगे तो फिर अपनी चीजें भूल जाओगे। हाँ वेरी हाँ, गुड। इसी वजह से सर थोड़ा। वहाँ बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा। मैं आगे पढ़ा लूँ, हाँ लास्ट में सब ओके, हाँ हाँ सर बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि देखो मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास जो है बहुत हेल्दी होनी चाहिए और जी सर। बहुत गुड। आपकी क्लास लेके सर हम बोर भी नहीं होते, लगता है कि मतलब एनर्जी मिल रही है। अभी आपकी तो क्लास आपकी में बोर फर्स्ट नहीं क्लास होते। है बेटा, हमारी ये फर्स्ट क्लास है और वेट तो करिए। हर एक, ये प्रभा जो है ना, ये मेंस के लिए आई थी, पूछ लीजिए। अच्छा। और हाँ मेंस के लिए आए होते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आई थी। एक क्लास ले करके एग्री हो हम गया। यही मतलब रह मेरा गए। कोई नहीं, मेरा कोई विचार ही नहीं था कि हम अच्छा। क्लास करेंगे, बट सर ने बोला एक क्लास आप इकोनॉमी की करो, तो एक मैंने दो सर पढ़ाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, पता है उनका, मैं 10 मिनट तक ही पढ़ती हूँ और उसके बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन सर की क्लास नहीं में मुझे ये नींद नहीं आती। नहीं, बिलीव मी सर, इसके पहले भी मैंने जहाँ पढ़ी हुई है, तो हाँ। मतलब आपकी क्लास ऐसे मुझे लग ही नहीं रहा कि हम इकोनॉमी इतनी एक इजीली मतलब तरीके ऐसा से पढ़ लगता है रहे कि हैं। कुछ छूट ना जाए सर से, मतलब सुनने में हाँ, कुछ रह ना जाए, ऐसा लगता है। और सेम टू सेम ऐसे हिस्ट्री की भी चल रही है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्लास एक सर के रहती तो है, तो क्लास में सिर्फ 5 मिनट लेती हूँ, 5 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है मुझे। आप टेंशन मत लीजिए, आपके सबसे जो भी है हम स्ट्रांग बना के। और देखो वहां तो कुछ समस्याएं हैं बेटा हुमा, जी मुझे सर। बाद में बात कर लेंगे उसके जी बारे में। बिल्कुल सर, मैं ऐसे कोई टॉपिक यहाँ नहीं करना चाहती डिस्कशन। हाँ चलो, तो आरआरबी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। एक बार 1 मिनट में हम क्या करते थे, इसका जी सर। समराइज कर देते हैं। देखो भैया, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब कुछ ऐसा है कि गांव के लोगों को जोड़ना है। बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग व्यवस्था से एक एक व्यक्ति को जोड़ना। अभी एक शब्द पढ़ोगे, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से छूट ना जाए, हर एक व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दो, तो वही है बैंकिंग वित्तीय समावेशन। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दरअसल बेटा इस वजह से करी गई कि देखो, कमर्शियल बैंक को कहा गया था कि 1/4 ब्रांचेस तो आपको कहाँ खोलना है, 1/4 शहरी एरिया में खोलना है। पर 1/4 भाई, भारत में तो खुद सोचो कि 70% जो लोग तो भारत में बसते हैं, और आप इन्हें कह रहे हो कि 70% को मात्र 25% ब्रांचेस मिले। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑड इवन वाला हो जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि सर एक चीज बताओ कि ग्रामीण एरिया में जो है बड़े बैंक या फिर जो फॉरेन बैंक है, जो विदेशी बैंक है, वो क्यों नहीं आना चाहते, क्या कारण है? सरकार ने आखिर ये 1/4 का क्यों मतलब एक मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये सब लॉजिक है, ये आपको मेंस प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। देखो बेटा, ग्रामीण एरिया जो है हमारा भारत जो है कृषि मतलब कृषक एग्रेरियन सोसाइटी रहा है। हमारी कृषि आधारित या कृषक आधारित व्यवस्था रही है। अब कृषि जो है इसको मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का मतलब जो है कभी ये भरोसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मानसून आ गया तो बरसात आ गई, डॉट आ वो सॉरी मतलब नदी आ गई, सब बह गया। कभी मानसून आया ही नहीं तो डाट आ गया, सूखा पड़ गया। तो इस वजह से कृषि को, भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अब यहाँ अब मान लो कि एक किसान ने अपने खेत में कुछ बोने के लिए उसने पैसा लिया था। अब उस साल जो है क्या आ गया, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ के चलते उसकी पूरी खेती क्या है, खराब हो गई। अब उसके पास तो क्या था, खेती था, फसल ही थी, उसी से वो पैसा दे पाता। लेकिन अब वो पैसा नहीं दे पाएगा। जब पैसा नहीं, जब बैंकों का पैसा डूब जाता है, उसी को एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डिटेल में होगा एनपीए, उसी को एनपीए कहते हैं। तो ग्रामीण एरिया में जो बैंक थे उनका एनपीए बढ़ने लगा, वो घाटे में जाने लगे। तो इसके चलते जो कमर्शियल बैंक जो थे या फिर वैसे सभी बैंक वो कतराते थे कि भाई अब क्या करें, आप शहरी क्षेत्र में ही यहाँ पैसा जितना नहीं मारा जाता है, तो ग्रामीण एरिया में अवॉइड करते थे। तो आरबीआई सभी का बॉस है, बैंकों का बॉस है, जो आरबीआई बोलेगा वही करना होगा बैंकों को। आरबीआई ने कहा कि रुको, 1/4 बैंक, अगर कोई मान लो कि जैसे हुमायूं ने कहा कि मुझे बैंक खोलना है, या फिर मैंने कहा कि बैंक खोलना है, तो बैंक सॉरी आरबीआई बॉस है इनके बैंक का। आरबीआई से पहले तो इनको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आरबीआई कुछ गाइडलाइन देगा कि इतना इतना करना है। उनमें से एक गाइडलाइन है कि हुमा को बताया जाएगा हाईलाइट करके
कि अगर आपने एक बैंक खोला, उसकी 100 ब्रांचेस हैं, तो 25 ब्रांचेस हर हाल में ग्रामीण एरिया में खोलना होगा जहां पहले से बैंक उपस्थित नहीं है। अब इन्हें हर हाल में खोलना होगा, अगर ऐसा नहीं करती हैं तो इनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा, रद्द हो जाएगा। ओके। तो अब जो है आरआरबी का एक कॉन्सेप्ट आता है, रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आता है। पहले जो आरआरबी रीजनल रूरल, आरआरबी है ये, आरआरबी ये, ठीक है, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, या आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, एक ही चीज है। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। तो इसका कॉन्सेप्ट आया। अब इसके कॉन्सेप्ट में ये था कि अब एक चीज और सुन लो, जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो भी बता दो। स्टार्टिंग में जो है अनुसूचित बैंक के अंतर्गत रखा गया, लेकिन अब जो है, और एक अलग श्रेणी बनाई गई थी, लेकिन अब इनको जो है वाणिज्यिक बैंक की ही श्रेणी में रख दिया गया। आरआरबी की स्थापना कहाँ होगी? प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र में होगी, नाम से ही पता चलता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण हिस्सों में ही होगी। और ऐसे आरआरबी जो उस मतलब क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसी एरिया में कार्य कर सकते हैं। और आरआरबी की स्थापना में, जब कोई आरआरबी की स्थापना होती है तो 50% पैसा, देखो कोई बैंक के लिए स्टार्टिंग में कुछ पैसे चाहिए, तो 50% जितना भी रुपया लगेगा उसका 50% केंद्र सरकार देगी, 35% राज्य सरकार देगी, और 35% सार्वजनिक बैंक देगी, पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि उसकी क्या है, ऑपरेशनल, सारा सब कुछ ऑपरेशन देखती है। ऐसे समझो कि आप गए फ्रांस पढ़ने, चलो फ्रांस बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, चलो आप लखनऊ पढ़ने गए, तो जो आपके मकान मालिक है, जो केयर टेकर है, ठीक है, तो जो सरकारी बैंक है ये समझो केयर टेकर है, ठीक है, इनकी मतलब इनका मुख्य आदमी कौन है, मुख्य मालिक कौन है? केंद्र सरकार, या फिर आरबीआई तो मुख्य है जो सारा चीज देखती है। लेकिन यहाँ पैसे के मामले में अगर बात करें तो जब कोई आरआरबी की स्थापना होगी तो 50 रुपए, 100 रुपए में से केंद्र सरकार देगी, 35 रुपए जो पब्लिक सेक्टर का वो बैंक देगा, जो इसका क्या है, केयर टेकर है, और जहां पे जिस राज्य में खोला जाएगा तो 15 रुपए वो राज्य देगा। चलो हटाओ, मैं इसको उदाहरण से बताता हूं। एक आरआरबी मतलब मान लो कि जैसे कि एक बैंक है आर्यावर्त, ये आरआरबी है, आर्यावर्त। दरअसल ये जो आर्यावर्त बैंक है, यहां आप देखोगे कि अगर मान लो इस बैंक की स्थापना हुई होगी जब, तो अब जो पेडअप कैपिटल बताया था ना, कि जब किसी भी संस्थान के स्थापना के दौरान जो अनिवार्य जरूरी जो जितना अमाउंट है उसी को पेडअप कैपिटल या हिंदी में प्रदत्त पूंजी कहते हैं। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि ये वो पैसा जो अनिवार्य तौर से उस संस्थान को इस्टेब्लिश करने में उतना मिनिमम अमाउंट रखना ही रखना है, उसी को पेडअप कैपिटल कहते हैं। अब मान लो उदाहरण के तौर पे कि आर्यावर्त को खोलने के लिए आरबीआई ने कहा कि भाई 100 रुपया पेडअप कैपिटल चाहिए, तो 50 रुपया कौन देगा? 50 रुपया केंद्र सरकार देगी, 35 रुपया क्या देगी? पब्लिक सेक्टर की बैंक देगी। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है कोई, चाहे पीएनबी ले लो, चाहे एसबीआई ले लो, तो मान लो एसबीआई, जैसे एसबीआई 14 आरआरबी को स्पॉन्सर करती है, तो मान लो कि एसबीआई कितना देगी? 35% देगी। और अगर मान लो कि ये यूपी में खुलता है तो 15% जो है यूपी गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर एमपी में खुलता है तो फिर जो है, अब यूपी नहीं तो 15% कौन देगी? एमपी गवर्नमेंट देगी। या कहीं और खुलता है तो वो सरकार देगी। तो मतलब सिंपल कि ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस आधार पे आरआरबी की स्थापना होती है। ठीक, अब पहले जो है इसकी वेरी फर्स्ट टाइम अगर मैं बताऊं कि 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाता है, 2 अक्टूबर 1975, और 4 जगह, कहां? 4 जगह जो है इसकी स्थापना करी जाती है। यूपी में 2 क्षेत्र हैं, एक मुरादाबाद और गोरखपुर। दूसरा है कि वेस्ट बंगाल में मालदा। तो 2 तो यहां हो गए, दूसरा, सॉरी 3 हो गए ना, ठीक है, चलो जी मुरादाबाद हो गया और वो बंगाल हो गया। और
ये आपका जो चौथा है ये राजस्थान में जयपुर, और आपका अगला मतलब जो पांचवा, इसे जो है चौथा कह लो, ये जो पांचवा हो गया आपका हरियाणा भिवानी। जो बच्चा हरियाणा से होगा तो जानता होगा, तो भिवानी एक एरिया है। ये 5 बैंक। धीरे धीरे इनकी संख्या खूब बढ़ गई, करीब 196 हो गई, लेकिन ये बहुत लॉस में चलने लगे। मैंने बताया लॉस के पीछे क्या कहानी थी, तो लॉस में चलने लगे। ये पैसा पूरी ग्रामीण एरिया को देते थे और हाँ बेटा पूछिए। सॉरी सर, आपसे नहीं, मैं म्यूट करना भूल गई थी, मम्मी से कह रही थी। अच्छा, तो ये जो है ना लॉस में, देखो एक चीज और भी है लॉस में। अब बैंक, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, अपना ही उदाहरण लेता हूँ। मैं आपको बताया कि मैं एक एग्रेरियन सोसाइटी से आता हूँ, मतलब मेरी खेती होती ठीक ठाक है, खेत होता है मेरे पास। मेरे जो पिताजी हैं वो खेती उती करते हैं, बढ़िया खेती है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनने जो है लोन लिया था काफी टाइम पहले, ठीक है, खेती में मिल ही जाता है लोन, तो लोन लिया था और उस लोन को अभी तक उन्हें चुकाया ही नहीं। ना ही वो लेने वाले आए और ना ही वो चुकाए। अभी कल आए थे लेने वाले, 10-12 साल हो गए, और वो बेट किसका करते रहे, वो भी बेट करते हैं और बैंक वाले भी बेट करते हैं, और सब लोग बेट करते हैं। ग्रामीण एरिया में हर एक आदमी लोन लेके रखता है खेती में। नई सरकार आएगी और लोन माफ कर देगी। इसको जो है लोन वेविंग कहते हैं, इसके भी बारे में डिटेल में बताएंगे। सरकार जब जो है वोट के लिए, इससे लॉस बहुत है, लेकिन इससे जो है ठीक वैसे ही है। कहा जाता है कि एक पीएच को, एक दिव्यांग व्यक्ति को आप जो है बैसाखी पकड़ा रहे हो, बल्कि उसको थेरेपी देके उसके पैरों को मजबूत नहीं कर रहे हो। तो जो लोन या फिर जो इसके आधार पे कि हम लोन माफ कर देंगे, जो सरकारें बड़ा बड़ा अपना मेमोरेंडम जारी करती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे जो है ना दोनों तरफ से लॉस होता है। एक तो लोगों की हैबिट बन रही है जो वाकई में पे कर सकते हैं, मेरे पिताजी पे कर सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं किए, और नहीं करना चाहते हैं। क्यों? अब देखो, अगर जो व्यक्ति नहीं कर सकता है एक बार सोच सकते हैं, लेकिन जो कर सकता है, तो इसके चलते, सरकार के चलते क्या हुआ कि नहीं किया, तो भाई लॉस तो बनेगा ना बैंकों का। बैंक डिमोरलाइज भी तो होंगे, और बैंकों का अल्टीमेट उद्देश्य प्रॉफिट भी है, लेकिन हालांकि इनका नहीं है उद्देश्य, लेकिन अब पैसा ही नहीं बचेगा तो फिर ये कहां से कारोबार करेंगे, तो बंद होना लाजमी है। तो 196 जो है बैंक थे और हजारों में ब्रांचेस थी, लेकिन इनको घटा करके, इनका विलय करके 56 ला दिया गया था, और अभी 36 तक ला दिया जाएगा। क्यों? यही एक कारण है जो कि मैंने बताया, ठीक है। अब गोवा और सिक्किम में आरआरबी नहीं है, बाकी पूरे देश में आरआरबी हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आपको पूछना चाहिए कि सर गोवा और सिक्किम में आरआरबी का क्या लोचा है। गोवा में जो है 4 कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट है, और पूरा जो है वैसा शहरी टाइप एरिया है, तो ग्रामीण एरिया है ही नहीं है ज्यादा, इस वजह से आरआरबी की ऐसा कोई अच्छा, आवश्यकता। आरबीआई से भी वो आपने कल बताया था, स्टेट बैंक से भी सिक्किम ने वो नहीं देता है, हाँ, सर्विसेज नहीं देता है। कोई सर्विसेज नहीं लेता। उसका रीजन थोड़ा सा हमें डाउट रह गया था कि रीजन क्या था उसका। देखो बेटा क्या है ना, आप चलो ये बता देता हूँ। जब पॉलिटी में आप पढ़ेंगे ना, तो पॉलिटी जी में जब सिक्किम का, जो सिक्किम कैसे वो किया जाता है, जी जी। फिर सिक्किम ओवरऑल आप देखेंगे तो वो आत्मनिर्भर टाइप है, उसे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे आप ऐसे समझो कि वो आपके पास स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मतलब वो जगह जो है। देखो वहां बहुत कम पॉपुलेशन है, और उन्हें पैसे की ऐसे बहुत जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें मांगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि अगर मान लो कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं चौधरी साहब के पास जाऊंगा नहीं, तो चौधरी साहब फिर मुझे कहाँ रहने देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो वैसे ही कुछ मुझे वहाँ पन्नी चमकती दिख रही है, जैसे कि जी ओके ठीक है। जी। चलिए, अब जो है यहाँ तक ये आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया। अब मैं मानता हूं कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से टैकल कर सकोगे, ठीक है। हाँ सर। ये जो मैंने प्रोपोर्शन बताया, ये ध्यान रखना। 50% केंद्र सरकार, 35% वो बैंक जो स्पॉन्सर कर रहा है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बना भी होगा लास्ट टू लास्ट ईयर, देखना कभी ना कभी। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनको सहकारी बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकारी बैंक।
सहकारी बैंक भी अनुसूचित बैंक है। अच्छा, किन्हीं की तरफ से आवाज आ रही है, कौन है भैया? चलो ठीक है। सहकारी बैंक भी जो है ये, सॉरी, सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक है ये भी अनुसूचित बैंक है, शेड्यूल बैंक है, परंतु वे वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आते। मतलब ये शेड्यूल बैंक तो हैं, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे आपसी सहयोग के माध्यम से स्थापित होते हैं, मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से, और इनका उद्देश्य लाभ बनाने का नहीं होता है। जैसे जैसे सहकारी बैंक प्रचलित होने लगे, उन्हें राज्य सरकारों के नियंत्रण में लाया गया। जैसे जैसे ये पॉपुलराइज होने लगे, पहले क्या था, लोग जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के माध्यम से बैंक स्टैब्लिश कर देते थे, बैंक ऐसी कारोबार करता था, लेकिन ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। तो जब ये प्रचलित होने लगे, पॉपुलर होने लगे, तो इनको स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया गया, और इनका जो पंजीयन है, जो इनका रजिस्ट्रेशन है, 2 अलग अलग अधिनियमों के अंतर्गत किया गया। यानी राज्य सहकारी बैंक का जो पंजीयन है, स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनको स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत हुआ, लेकिन जो शहरी सहकारी बैंक है उनका मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ये सर दोनों एक के जरिए क्यों नहीं किए गए, अलग अलग की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, मैं जो है हुमा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं सर, मैं नहीं पूछना चाहती। हाँ ठीक है, तो प्लीज म्यूट कीजिएगा। हाँ प्रभा, आप क्या कह रहे हो? ये कह रहे थे सर, ये 2 अलग अलग के जरिए क्यों पड़ गया, मतलब एक के जरिए भी तो कर सकते थे। अरे देखो, एक स्टेट कोऑपरेटिव है, मैंने बताया हाँ। कि दोनों का रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो। अरे दोनों जो है अलग अलग वर्क भी तो करते हैं, कि एक जो है ग्रामीण एरिया में वर्क करेगा और एक जो है शहरी एरिया में वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो राज्य सहकारी बैंक का जो पंजीयन है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत, और जो शहरी कोऑपरेटिव बैंक है, जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। अब शहरी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं था। जो शहरी बैंक थे, सॉरी, जो सहकारी बैंकों पर, नॉट शहरी बैंक, तो सहकारी बैंकों को पर आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था। इन्हें आरबीआई के नियंत्रण में 1966 में लाया गया, 1966 में आरबीआई के कंट्रोल में लाया गया। वर्तमान में सहकारी बैंकों पर, बार बार शहरी बोला, सहकारी बैंकों पर दोहरा कंट्रोल है, दोहरा नियंत्रण है। राज्य इन बैंकों के प्रबंधन का नियंत्रण देखती है, मैनेजमेंट देखती है, वहीं आरबीआई इनके बैंकिंग क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। मतलब प्रबंधन, मैनेजमेंट कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और जो बैंकिंग क्रियाएं हैं वो कौन देखेगा? बैंकिंग एक्टिविटीज कौन देखेगा? आरबीआई देखेगा। राज्य सहकारी बैंक एक राज्य से बाहर जो है वो कार्य नहीं कर सकते हैं, जो राज्य सहकारी बैंक है। जिला स्तर पर इनको, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है, और ग्रामीण स्तर पर इनको पीएसीएस कहा जाता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और पीएसीएस पर आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है आज भी। वहीं शहरी सहकारी बैंक एक राज्य से बाहर भी कार्य कर सकता है। अब आपको याद होगा कि इस वजह, अब आपको आ गया होगा प्रभा, कि इस वजह से इनको अलग अलग एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को मैंने बताया कि उसका जो है रजिस्ट्रेशन कैसे, किसके अंतर्गत किया गया, और जो दूसरे जो बैंक हैं, सॉरी, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उनका जो है दूसरी एक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन किया गया। इस वजह से इनके पीछे का ये लॉजिक है। हाँ सर, आ गया समझ में। अब शहरी सहकारी बैंक जो है, जो शहरी सहकारी बैंक है, यानी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो राज्य के बाहर भी काम कर सकता है, यूपी के बाहर, एमपी में, महाराष्ट्र में, कहीं भी। लेकिन जो दूसरा बैंक था, तो वो जो है जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जो स्थापित किया गया था, जो राज्य सहकारी बैंक, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, वो बाहर जो है काम नहीं कर सकता था। अगर वो यूपी में है तो यूपीआई में कार्य कर सकता था, वो राज्य से बाहर काम नहीं कर सकता था। पिछले वर्ष बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020 के जरिए सहकारी बैंकों को आरबीआई के नियंत्रण में ला दिया गया है, जो सहकारी बैंक है। तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। वहीं भारत में सहकारी बैंक जो है, ये एक ऐसी बैंक है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है, और ये
मतलब जो है भारत में एक सहकारी बैंक है, एक कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि वो जो होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है, उसके अंतर्गत कार्य कर रही है, और यह रेपको बैंक के नाम से कार्यरत है। रेपको बैंक, रेपको। अब इसका जो पूरा नाम है लिख देता हूं, थोड़ा सा फैक्ट का ज्यादा बम्बारमेंट हो गया, इसे वापस कल एक बार समझाना पड़ेगा। रेपको बैंक, रेपको बैंक यानी रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक, इसका पूरा नाम। और ये मात्र तमिलनाडु में ही कार्य करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। और इस बैंक की जो स्थापना है, जब श्रीलंका से जो लौटे जो भारतीय जो तमिल लोग थे, तो उनके रिहेबिलेशन के उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना करी गई थी। जो याद होगा, जो लिट्टे की समस्या से, जो लिबरेशन तमिल ईलम थे ना, उनकी समस्या से जो लोग जो जूझ रहे थे, उसके बाद जो लंका से वापस जो है तमिल भारतीय वापस आए थे, तो उनके रिहेबिलेशन मतलब उनके पुनर्वास के लिए क्या किया गया था, ये बैंक की स्थापना करी गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, नोट डाल के लिख लीजिए, रेपको बैंक। और किसके अंतर्गत ये आती है, कार्य करती है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और ये कोऑपरेटिव बैंक है। अब बताओ, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सर ये हो किसके अंदर बताया, किसके होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, हाँ। चलो, तो कल जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, तो 5-7 मिनट में नहीं होगा, कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है। तो फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा। मैं 5 मिनट में नोट्स भेजता हूँ, एक बार नोट्स पढ़ना वापस से, ठीक है, इस क्लास के बाद। और जो चीजें मैंने अपडेट करवाई हैं, होपफुली जो है वो आप नोट्स पे अपडेट कर लोगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है, राज, प्रभा, हुमा, सर एक सर एक्चुअली डाउट आ रहा था, लेकिन सर सोच रहे थे क्यों पूछे। सर ये आ रहा था कि इतनी सारी बैंकें बनाने का पर्पस क्या था, मतलब कोई भी 2 भी तो बना सकते थे, जैसे एक शहरों के लिए और एक ग्रामीण के लिए, उसमें सारे काम हो जाते। अगर हम दो स्कूल अगर रख ले, एक प्राइवेट एक वो रख लेते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, तो उसमें परेशानी ये होगी, सारे लोग एक साथ जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे ना बच्चे। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल काफी है। इसी तरह से हर इंसान इतनी इतनी दूर ऐसे कैसे कर लेगा, और एक ही ब्रांच पे फिर लोड बहुत हो जाता है, चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हेडेक बहुत ज्यादा हो जाएगी, सर्विस नहीं मुझे नहीं, लगता है उतनी मतलब अच्छी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये सुनो, ब्रांच 2 होती, मतलब बैंक 2 मैं होती, समझ लेकिन गई, ब्रांच बैंक तो की हर 2 जगह ही उसके होती डेवलप ब्रांच, करा उसकी देनी 100, चाहिए हाँ, थी। 100 ब्रांचेस खोल देते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो 100 ब्रांचेस पे मतलब मेन तो एक ही बंदे पे हेडेक जाएगा ना, जो मैं उसका बताऊं? हेड होगा। जी सर। हाँ, हेडेक चलो। नहीं। और ये सर एक और पॉइंट हाँ इसमें जोड़ दो, ये बिजनेस भी होता है, यानी लाभ कमाने के लिए हाँ। बैंक होते हैं। तो जिसको पैसा कमाना होता है वो लाइसेंस लेके बैंक खोल के बैठ जाता है, वेरी गुड, अब जिसके आप पास कुछ आए नहीं हो। है। अब जो है हाँ यही ये सही है। ठीक है, नहीं, उमा का भी सही था, उसका भी, उनका भी बोलना सही था, वो भी इसका भी ठीक ही बोल लॉजिक रही थी सर एक तरह से। एग्जैक्टली इनका यही है कि देखो, मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो सब प्राइवेट बैंक थे, उनको नेशनलाइज बाद में किया गया 1969 में, 1980 में, है ना। तो अब हम्म बताओ कि प्राइवेट बैंक खोलना है तो आप प्रभा शुक्ला हम्म। बैंक लिमिटेड खोलोगे, हुमा तो हुमा मीरन एक्सेप्ट बैंक लिमिटेड खोलेंगी, मैं तो देवी सिंह चंदेल और ये बैंक खोलूंगा ना, तो एक नाम से कैसे पॉसिबल है? हाँ, वही सर, बिल्कुल। और राइट सर। दूसरी चीज कि अब जैसे सरकार क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने, आपको आइडिया होगा, जो एसबीआई, बाकी उन प्राइवेट बैंकों को उसने सर देखो, आज वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी नहीं, नेटवर्क वैसे ही इशू है, मौसम की वजह से हाँ होता सर, आज से नेटवर्क ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। तो चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। और बाकी का डाउट हो ठीक है, तो फिर पूछना, आप जो है मैसेज कर सकते हो, कुछ भी है। और बाकी फिर मिलते हैं कल, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू है। सर। ओके सर। सर हाँ, आप यूपीएससी पाठशाला पे भी क्लास लेते हैं ना? नहीं, मैंने नहीं ले ले रहे आप? अच्छा, मैंने यूपीएससी ठीक। पाठशाला जो है ना, मतलब हम्म। उन्हें टर्मिनेट कर दिया है, और आधार सिर्फ ये था। यहाँ पर जो है राज हैं और बाकी बच्चे हैं, हम्म। सब जो है एक्चुअल में इनके साथ सेम वही जो समस्या। वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो आपके पास आए हैं खुद ही, क्योंकि उन्हें वहां से प्रॉब्लम हुई है, तब वो यहाँ तक आए।
और प्रॉब्लम ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, मुझे सर हम लॉजिक 10-12 के स्टूडेंट ही नहीं है जो हम मतलब हेडेक लेके पढ़ सके। मैंने यही चीज कंप्लेन भी किया है कि हम 10-12 के स्टूडेंट नहीं है जो आप हमें टेंशन दें और हम अच्छे से पढ़ाई कर ले। जब आप लोग हमारे डाउट ही क्लियर नहीं कर सकते तो हम पढ़ कैसे सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ आता कि सप्ताह में 2 क्लास आधे आधे घंटे की उनकी ये मतलब अब क्या ये ही कोई बता। कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मतलब आप तो अपने स्टूडेंट वो वाला सर समझ आजकल रहे का हैं कि बिजनेस बस चल रहा है सर। बोर्ड क्लास के लिए तैयारी करा दो, बच्चों के दिल में ये खौफ है वो निकल जाएगा, वो बोर्ड के एग्जाम दे के आ जाएंगे। मैंने ऐसा थोड़ी ना सेम होता है चीज सर। यही बोली थी बेटा, मैंने सेम चीज यही कहा था, तो उन्हें जो है टर्मिनेट कर दिया। सेम चीज मैंने, बहुत सारे बच्चे थे उस क्लास में। मैंने 3-4 लोगों ने डाला टर्मिनेट की नहीं, हमने अपना डाल दिया। हमने तो बैंक में भी मैंने डाल दी है कंप्लेंट, वहां पे भी मेल डाला है कि मेरा लोन आप लोग कैंसिल करिए, इन लोगों ने मेरे साथ मतलब चीट कर रहे हैं। और जितने भी स्क्रीनशॉट है मैंने ऊपर से भेज दिए सारे। मैंने तो उनके हेड ऑफिस तक भेजी है मेल करके। तो यहाँ तक बेटा जो है ना, आप अकेले नहीं हो, कम से कम जो है मतलब आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसी चीज के शिकार है। और एक तो फीस का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है सर। किसी का 20,000 है, किसी का 60,000 है, ऐसे करके तो फीस देखो है। ये क्या है, ये मैं बताता हूँ ना, ये जो है टकले को कंघी बेचने का जी मतलब जी आपको जी जी, लॉजिक पता है हाँ हाँ कि हाँ कोई टकला थोड़ा सा स्मार्ट हुआ, उसने बोला कि अरे मेरे हाँ भी बाल हैं, मैं थोड़ा बहुत काम कर ही लूंगा, तो हाँ, वही कम वाला। में बेच देंगे। और अगर जो कोई जो है टकला बिल्कुल टकला है तो उसको कम में और हाँ कम में बेच देंगे, जिसके थोड़ा ज्यादा बाल है उसको और महंगा बेचेंगे। मतलब नहीं, एक उन्होंने मुझे बेचने कहा का हमारी बेच। पॉलिसी है हाफ फीस ऐसे होगी, ये होगा वो होगा। तो मैंने और कहा फिर ठीक है ना बोलेंगे, बैंक। नहीं नहीं बोलेंगे 3 लाख फीस है, और हम्म, अभी अभी जो है बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है 25। सारे ऑफर हमें ही दे देते हैं, खुद ही बिना मांगे सारे ऑफर भी निकाल देते हैं। ये चलता है, ये होती है समस्याएं। ये नहीं सोचते हम लोग खुद सर अपना वर्किंग में प्लेटफॉर्म है, कैसे मतलब हम चलाएंगे स्टूडेंट अगर ऐसे नहीं नहीं है बोलेंगे तो तो? फिर हम कैसे। हम्म। हाँ सर, मैं खुद वर्किंग वाली हूँ और मैं अपनी एक एनजीओ भी चलाती हूँ। और एनजीओ चलाने वाला आपको पता ही है फील्ड में काम करता है। और फील्ड वाला बंदा तो इतनी नॉलेज तो रखता ही है कि आप बेवकूफ आप कहाँ कौन तक सा बना एनजीओ रहे चला, हैं। जन्नत एजुकेशनल वेलफेयर किस सोसाइटी के नाम रिलेटेड से एनजीओ चलाते चलता है हैं। आपका? मेरा एजुकेशन पे चलता है और वुमेन एम्पावरमेंट पे चलता है। मतलब हमारा ऑल उस पे चलता है, कैटेगरी पे हम जो भी रहता है उस पे सब पे चलाता है। हेल्थ पे भी चलाते हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट है हमारे। तो मिनिस्ट्री से भी है मेरा रजिस्ट्रेशन, तो मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, हम गरीबों के लिए फ्री ओके। एजुकेशन देना, ये सब। मेरी ये फर्स्ट अटेम्प्ट दोगी क्या आप? जी मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। वो कब भी देना है मैं किसी रीजन से ही देने के लिए हुमा? सोचा था कि फर्स्ट मुझे अटेम्प्ट कब देना है हुमा? सर 2023 का ही टारगेट था, लेकिन इन लोगों ने तो इतना डिस्टर्ब कर दिया कि 2023 का तो कुछ हालात ही नहीं दिखाई दे रहे। जो डिस्टरबेंस तो इनसे, आप मैंने क्या सेल्फ स्टडी में 24th अच्छी में की थी। दोगे? अभी तो मैं फर्स्ट तो दूंगी, मतलब उसमें मेरा एक चीज ये है हम्म, कि जो थोड़े बहुत डाउट होंगे ना और एग्जाम में बैठने का थोड़ा आइडिया, ये सब चीजें भी लेने के नहीं है। वो अलग बात है कि हम उतने प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमें ये हम्म, पता चल जाएगा कि हम कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ओके। अटेम्प्ट देने का तो मेरा मूड है 2023 में। आ, हुमा, मैं एक जी चीज सर। आपको कह सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं, बाकी बच्चे जो है क्लासेस में, वो क्लासेस करके अगर आप हम्म मेहनत करते हो तो यूपीएससी को जो है ना, मतलब हम जो 14 से 18 माह में एकदम हम्म, वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हो, जी 14 से 18 क्योंकि माह। यहाँ पे सर पढ़ाई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ नॉलेज कॉन्सेप्ट है इनका। हम्म, ये राइट। नॉलेज मांगते हैं सिर्फ आपसे, आपसे पढ़ाई नहीं मांगते हैं। आप कितना पढ़ के आए हो, कितनी बुक्स आपने रटी हैं, ये सब उन्हें नहीं पता। आप कर क्या सकते हो वो ये देखते हैं। तो मैं आप वही पूछ रहे चाहती हो हूँ कि कि हम बता रही हो? प्रैक्टिकली क्या करें। आई बता थिंक रही आप हैं। जैसे चाहे ले लें। वो तो डिपेंड करता है। बता हुमा रही हुमा हैं। हुमा हुमा सुनिए तो। नहीं, हम लोग बताने पे ही ले रहे हैं, डोंट वेरी। हुमा, हम जी सर। दरअसल जो है अभी तक हमें भी लगा कि लगता है आप पूछ रहे हो। अब मैं आपको नहीं सर, बताऊं, बता रही हैं। राज तभी नहीं पूछा, और सही है। आप ये कह रहे हैं कि ये परीक्षा नॉलेज की है, पर मैं ये कह हाँ। रहा हूँ कि नॉलेज से ज्यादा ये परीक्षा रणनीति की है। कभी जी टाइम सर। होगा, हम्म, कभी टाइम होगा, डिटेल में डिस्कस हम्म, करेंगे। जी पर सर, एक एक लाइन क्लास में, आप हम लोग की ऐसे ही ले लीजिए जिसमें हम सिर्फ डिस्कशन ही कर सके। हाँ, एक लाइन में जो है ना, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। जी जी। मेरे टाइम पे 30 साल का बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई करता था, मतलब टॉप करता था। जी आज जो सर। है, आज 23 साल का बच्चा, नॉट टॉप 30 कर हम्म, लो। 3। तो ये रणनीति की परीक्षा हुई ना, क्योंकि जी 30 सर साल बिल्कुल। वाला तो वो लंबा टाइम मिला, हो सकता है उसने ज्यादा बुकें जी सर। चाट ली हो। तो हम्म, ये परीक्षा, ये जो एग्जाम है, नॉलेज हम्म, का उतना नहीं जितना कि ये रणनीति का एग्जाम है। जी सर। और मैंने बताया, हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, गाइड बुक मत पढ़ना, चुटका बुक मत पढ़ना, हम्म, ठीक है?
स्टैंडर्ड नॉलेज उठाना। स्टैंडर्ड बुक और नोट्स, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। मार्केट में तो बस यही है ना चीजें, जब तक सर हमें क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट, तो मार्केट वो में अगर इतना डर नॉलेज है। हमें नहीं आएगी देखो, तब तक हाँ हम सर, मेन से रणनीति पे भी नहीं उतर कॉन्सेप्ट क्लियर सकते। होना चाहिए, क्योंकि सर बुक्स वगैरह में रणनीति तो अगर हम लिए तभी बैठे करेंगे रहते जब तो सर हमारे पास नॉलेज होगी, हमें पता होगा, चीजों का कॉन्सेप्ट पता होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या चीज है, तो तभी बेटा हम आगे कुछ करेंगे। बेटा मार्केट में इतना डर है, इतना एक डर बनाया गया है, माहौल है। खौफ है, जैसे कि हम लोग का पहले 10th का बोर्ड होता था तो हम लोग को खौफ होता था, बोर्ड है। फिर 12th में भी ऐसा ही होता था, लेकिन जो दे देता था उसे पता होता था इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, होता नॉर्मल एग्जाम ही है, लेकिन बोर्ड का नाम होता है सिर्फ। वो अच्छा वाला खौफ है यार। अच्छा, मैं अपना आज एक वीकनेस बताता हूँ। जी सर। 10th का मैं जो है टॉपर रहा अपने। हमारे यूपी में कॉलेज बोलते हैं 10th से ही, इंटर अच्छा। कॉलेज। जी इंटर जी। कॉलेज बोलते हैं। इंटर कॉलेज। बच्चे यूपी से होंगे तो उन्हें पता होगा। जी जी, तो इंटर हाँ कॉलेज बोलते रामधारी इंटर हाँ कॉलेज, फला फला। हाँ हैं। हाँ हाँ, सर। तो मैं जो है ना अपने 10th का टॉपर रहा हूँ। वेरी गुड। 12th में और टॉप मेरा जो सबसे ज्यादा मार्क्स था वो मैथमेटिक्स में था। 12th में ओके पता सर। नहीं कुछ ऐसा हुआ, मुझे पता है क्या हुआ, पर वो ज्यादा बहुत डीप नहीं जाऊंगा, वो सबके साथ उस एज में होता है। तो जी सर। मुझे आज भी कभी कभी सपने आते हैं कि अच्छा मैं 12th में हूँ और मैथ्स में फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ पासिंग मार्क मिले थे मुझे। और फिर मैं सोचता हूँ कि अरे मैं 12th में नहीं हूँ, 12th में बहुत जमाने में पास कर गया था। फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि सब आलिस बेल आलिस बेल। सर ये आपने एक न्यू बात बताई हुई है। और मुझे यूपीएससी से कभी कसम से डर नहीं लगा, मतलब सोचिए यूपीएससी से डर नहीं लगा। नहीं सर, आपको जितना डर था आप सपने में डर गए, तो आप यूपीएससी तो फिर नहीं डरने वाले। लेकिन मैं अभी भी सोचा करता हूँ, जब मुझे सपने में अक्सर मतलब 1-2 माह में तो रिपीट कर ही जाता है, और ये सेम लाइन टू लाइन फेल कर गया। सर किसी चीज से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप सपने में डर चुके हैं सर और आप रियल लाइफ में आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हाँ सर, आप 12th वाला देख चुके हैं ना, तो अब यूपीएससी नहीं आपको डरा सकती। और अरे वो कहानी भी बड़ी मतलब बहुत ही अलग है। सर तो स्टूडेंट लाइफ में एक ही बार डरता है। अच्छा, हाँ। अब कुछ काम की बात अपन कर लेते हैं। जी सर। काम की बात ये है कि ध्यान से पढ़ाई करना है, एक जी सर स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल। पढ़ना है, मात्र एक स्टैंडर्ड बुक हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। और जी एक, सर। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ज्यादा से सर ज्यादा। आपने कहा था मेंस के क्वेश्चन देंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाना है, मेंस की आंसर राइटिंग करना है। मैं स्टैंप में अगर इतना करके देते हो ना तो मैं स्टैंप पे लिख के दे सकता हूँ। सिलेक्शन का नहीं, सिलेक्शन तो मेरे बस में नहीं, सबसे पहले जी मेंस। सर। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम जो है मतलब आप पीटी हो जाएगा, मेंस हो अच्छा, जाएगा। हाँ फाइनल जाएगा, अच्छा सिलेक्शन का क्या जाएगा। है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ, वो तो इंटरव्यू पे भी, पर्सनालिटी पे, बहुत सारी चीजों को वो नोट डाउन भी कर पर लेते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपके स्कार्सिटी ऑफ नॉलेज, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है पीटी या मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। नहीं कर पाए। जी सर। तो इसका मैं लिख के जरूर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि डेली, मैं तो संडे भी छुट्टी नहीं देता, पूछिए बच्चों से। जी सर बिल्कुल। हाँ। जितना हम पढ़ाते हैं उसका संडे टेस्ट होता है, पूरा कंप्लीट टेस्ट होता है, ठीक है। और प्रभा एक काम करते हैं कि हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं, राज तो राज भी बोले हैं, तो मैं मेंस वाले क्वेश्चन तीनों लेक्चर के नहीं, सॉरी तीनों चैप्टर के, यानी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, दूसरा इन्फ्लेशन था और तीसरा हमारा था मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हाँ सर। तो उसके मैं आपको सारा सब कुछ वो भेजता हूँ, कल सुबह भेजूंगा। और इसका फिर ठीक जो है अगले मतलब जैसे ही हमारा ये टॉपिक, ये तो 14 दिन चलने वाला है कम से कम, ठीक है। ठीक है सर। बैंकिंग सिस्टम 2 दिन तो हो ही गए हैं इसके, तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। सर सुबह हिस्ट्री की क्लास सर लेंगे 11 बजे? हाँ वो तो डेली होगी, हाँ होगी, डेली हाँ होगी। ठीक है। सर हिस्ट्री की क्लासेस क्या है ना, प्रीवियस क्लासेस भेजने के लिए बोला था, आपको एक बार इन्फॉर्म हाँ कर सर, देंगे। हाँ ये सर हम लोग बोलना भूल गए थे, सर से भी पूछा हुआ था सर, स्टार्टिंग वाली क्लासेस भेज दीजिएगा सर हिस्ट्री की। प्रीवियस वाली, अच्छा प्रीवियस वाली क्लासेस, प्रीवियस वाली अच्छा कहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। सर वहाँ तो पोर्टल ही नहीं चलता, हम बड़ा परेशान ठीक हो है सर। जाते हैं वहाँ तो। अरे यहाँ सब सारा चीज आसान है, मैं सब भेज जी दूंगा, जी सर। परेशान नहीं होना है, ठीक है। जी देखो सर। यहाँ सबसे बड़ी बात ठीक है, है। वहां एक बार एडमिशन हुआ तो आप भूल जाओ, आप फोन भी लगाओगे तो नहीं पिक करते हैं। सर अब तो मैं फोन ही नहीं लगाती, मैं तो मेल डालती हूँ, एक कॉल करती हूँ, उसको रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद उसी को उठा के सेंड कर देती हूँ आगे डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जी सर बिल्कुल।
और हाँ। बाकी बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जी सर। फैकल्टी और जी सर। सुप्रीम अथॉरिटी भी रखता हूँ इस संस्थान वेरी में। तो किसी भी चलो ठीक है, अब जो है कल मिलते हैं और जी बढ़िया से ठीक है। पढ़ाई ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी।